ہماری قوم وہ ہے کہ ہماری بیٹیاں حجاب پہنتی نہیں مگر ہم حجاب کی لڑائی لڑ رہے ہیں۔ ہمارے نوجوان چہرے پہ نبی کی سنت کو سجاتے نہیں مگر ہم سنت مصطفیٰ کی لڑائی لڑ رہے ہیں۔ فجر کی اذان سن کر ہم بیدار ہوتے نہیں مگر ہم اذان کی لڑائی لڑ رہے ہیں۔ تو صاحبوں، جب عمل کرو گے نہیں تو پھر میدان میں لڑنے سے فائدہ کیا ہے؟ یہ فیس بک کی وادی میں لڑنے سے بہتر ہے کہ عمل کی وادی میں لڑنا شروع کرو۔ اس لیے بیدار ہوئیے۔ یہ جو بہت وی آئی پی قسم کے لوگ کھڑے ہیں انہیں بھی معلوم ہونا چاہیے کہ میدان محشر میں جب اٹھیں گے تو جسم پہ ایک کپڑا بھی نہیں ہوگا، جسم پر ایک کپڑا بھی نہیں ہوگا، سورج سوا نیزے پر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، آسمان فولاد کا ہوگا، لوگ پسینے میں ڈبکیاں لگا رہے ہوں گے۔ اس نفسی کے عالم میں پھر کیا ہوگا؟ اس لیے جو لوگ ادھر کھڑے ہیں ان سے بھی میری گزارش ہے کہ ادھر کرسیاں لے کر کے، کرسیاں تو ہے نہیں، یہ زمین پہ ہی بیٹھ جائیے۔ آپ زمین پہ بیٹھنا ہے تھوڑی ہے۔ ایک بابا بولتا ہے بھارت میں تو سارے امیر لوگ چٹائیاں بچھا کر زمین پر بیٹھ جاتے ہیں۔ کسی سے اس نے پوچھا کہ زمین پہ کیوں بیٹھاتے ہو؟ کہا اس لیے تاکہ یہاں پہ بیٹھنے کے تکبر کم ہوتا ہے، غرور ٹوٹتا ہے۔ انسان کے اندر جو تکبر ہے اس تکبر کو توڑنے کے لیے زمین پہ بیٹھنا ضروری ہے تاکہ انسان یہ سمجھے کہ ہماری منزل یہی ہے جس زمین پہ ہم بیٹھتے ہیں۔ اس لیے یہ بتائیے کتنے لوگ ہیں جو تقریر سننا چاہتے ہیں؟ سارے لوگ سننا چاہتے ہیں، بڑے اچھے لوگ ہیں۔ ہماری جماعت کے مایناز علماء کرام تشریف کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ استاد العلماء جلالت الدین حضرت علامہ عبدالقادر صاحب کی ملا ماشاءاللہ، وہ بارود چہرہ، باجمال چہرہ۔ آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں نقیب اعظم ہندوستان حضرت مولانا ابرار احمد عرف حجر سیوانی صاحب کی ملا ماشاءاللہ تشریف رکھتے ہیں۔ مجھ سے پیشتر آپ نے شاعر ہندوستان جناب شمس تبریز صاحب کی ملا گیری بھی جھارکھنڈ کی نعت خوانی ہوئی، پھر اس کے بعد شمس کرکتوی، پھر اڑیسہ کے اس عظیم شاعر سے آپ کی ملاقات ہوگی خواجہ غلام سرور صاحب کی ملاقات۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ کی شہر محبت میں شہزادہ غوث اعظم پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضرت علامہ سید مسرور راضی صاحب کی خانقاہ شہبازیہ بھاگلپور شریف تشریف لا چکے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ خطیب یورپ و ایشیا حضرت علامہ شہریار رضا صاحب کی قادری، ان کی بھی گفتگو سے آپ مستفیض ہوں گے۔ اتنے خطیبوں کو آپ نے بلایا ہے، فقیر کی بھی حاضری ہوئی ہے۔ ایک شعر میں پڑھتا ہوں، اگر آج سمجھ میں آئے تو آج سبحان اللہ بول دیجئے گا، ورنہ زندگی میں جب سمجھ میں آئے سبحان اللہ بولنے پہ کوئی پابندی نہیں۔ ان بجھے چراغوں میں روشنی نہیں ہوتی، ان بجھے چراغوں میں روشنی نہیں ہوتی، مصطفیٰ نہیں ہوتے تو زندگی نہیں ہوتی۔ جتنے لوگ سمجھ گئے ہیں وہ ہاتھوں کو اٹھا کر بولتے سبحان اللہ۔ جو لوگ نہیں سمجھے ہیں انہیں کل سمجھا دیجئے گا۔ ان بجھے چراغوں میں روشنی، میرے امام نے لکھا، جب میرا امام بولوں تو اس سے سمجھیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ و رضوان۔ میرے امام نے کہا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ ان بجھے چراغوں میں روشنی نہیں ہوتی، مصطفیٰ نہیں ہوتے تو زندگی نہیں ہوتی۔ خود چراغ بن کے جلو وقت کے اندھیروں میں، میاں بھیگ کے چراغوں سے روشنی نہیں ہوتی۔ چراغ
बन के जलो वक्त के अंधेरों में, खुद चिराग बन के जलो वक्त के अंधेरों में, भीख के चिरागों से रोशनी नहीं होती। ये है पैगाम दिया मेरे आला हजरत ने, दीन के गद्दारों से दोस्ती नहीं होती। ये है पैगाम दिया मेरे आला हजरत ने, दीन के गद्दारों से दोस्ती नहीं होती। हमारा ताल्लुक जिस मजहब से है उसे मजहब इस्लाम कहते हैं। हमारे आबा व अजदाद का ताल्लुक जिस मजहब से था उसे मजहब इस्लाम कहते हैं। इंशाअल्लाह आने वाली हमारी नस्लों का जिस मजहब से ताल्लुक होगा उसे भी मजहब इस्लाम। दोनों हाथों को उठाकर बोले मजहब इस्लाम, और प्यार से बोले मजहब इस्लाम। इस जलसे का नाम है आमद रसूल कॉन्फ्रेंस व इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस। माशाअल्लाह, हुजूर की आमद से पहले हालात अच्छे नहीं थे, समाज का माहौल अच्छा नहीं था, लोग शराब खाने में जीते थे, इंसान जुआ खाने में जिंदगी गुजारता था। एक बाप अपने हाथों बेटियों को जिंदा दफन कर देता था। मार्केट में जैसे जानवर बेचे जाते हैं ऐसे उन इंसानों को गुलाम बनाकर बेचा जाता था। बाप के मरने के बाद औलादे गांव को नौकरानी बनाकर रख देती थी। भाई भाई का दुश्मन था, कबीले कबीले का दुश्मन था, इंसान इंसानियत का दुश्मन था। लोगों को पता नहीं था कि शऊरे बंदगी क्या है, लोगों को पता नहीं था शऊरे जिंदगी क्या है। ऐसे पुरफतन दौर में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आमिना के लाल को सारी कायनात के लिए रहमत व तकवा बनाकर भेजा। ऐ महबूब, आपके आने का मकसद क्या है? ऐ आमिना के लाल, आपके इस खाके गिद्दी पर आने का मकसद क्या है? ऐ कौनैन के ताजदार, आपके इस खाके गिद्दी पर आने का मकसद क्या है? और आज उसका जिक्र यूं करता है कि जबकि तुम ये नबी इसलिए आए ताकि तुम्हारे बिगड़े हुए माहौल को अच्छा कर दे, तुम्हारे समाज को गंदगी से साफ सुथरा कर दे, तुम्हारे दिलों से गंदे ख्यालात को निकाल कर तुम्हारे दिलों में बंदगी का जज्बा भर दे, तुम्हें समाज में अच्छा इंसान बना दे। इसी मकसद के लिए कौनैन के ताजदार खाके गिद्दी पर तशरीफ लाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साल आमिना के लाल खुफिया तौर पर मजहब इस्लाम की तबलीग करते रहे। 23 साल इनामदार तौर पर आका इस्लाम की तबलीग करते रहे। 40 साल आमिना के लाल किरदार से इस्लाम की तबलीग करते रहे। लोगों को बताते रहे एक मोमिन की जिंदगी ये है, एक मोमिन का किरदार ये है, एक मोमिन का कैरेक्टर ये है, एक मोमिन की पोजीशन ये है, एक मोमिन की हालत ये है। आज हमें भी अपने हालात को देखने की जरूरत है, आज हमें भी अपनी जिंदगी को देखने की जरूरत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने महबूब को कुरान अता किया। ऐ महबूब, जब कोई पढ़ा लिखा इंसान इस्लाम समझने के लिए आए तो कुरान की तिलावत कीजिए। मेरे इमाम ने यूं कहा, तेरे सामने यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई बोझ कोई जाने मुगले ज़बां नहीं, नहीं धन के जिस्म में जान रही। अल्लाह अल्लाह, एक तरफ मेरे आका किरदार से इस्लाम की तबलीग कर रहे हैं, एक तरफ कुरान की तिलावत से आका इस्लाम की तबलीग कर रहे हैं। 23 साल की थोड़ी सी मुद्दत में आका ने पूरी दुनिया में इस्लाम का परचम लहरा दिया। शराब खाने में ताले लग गए, जुआ खाने में ताले लग गए, बेटियां बावकार हो गई, फिर बच्चे बावकार हो गए, माओ को मकाम मिला, औरतों को इज्जत मिली। सारी दुनिया में ये नारा लगाया कि मुस्तफा जाने रहमत से अच्छा समाज में कोई इंसान नहीं है, अच्छा दुनिया में कोई व्यक्ति और कोई इंसान नहीं है जिसका जिक्र मेरे इमाम ने यूं किया। वो कमाले हुस्ने हुजूर है, ये गुमाने नफ्से जहां नहीं, वही खून खान से दूर है, वही शम्मा है कि हुआ नहीं। चाहूंगा क्या इस्लाम इतना आसानी से फैल गया जितना आसानी के साथ मैंने बयान कर दिया? नहीं साहबों, इस्लाम इतना आसानी से नहीं फैला है। जो भी इस्लाम कबूल करता उसे सताया जाता, उसे सूली पर लटकाया जाता। आज लोग कहते हैं इस्लाम पे चलना मुश्किल कम है,
मैं पूछना चाहता हूँ, आज चलना मुश्किल काम है या उस वक्त इस्लाम पे चलना मुश्किल काम था जब सारे हरम में मुस्तफा जाने रहमत सजदे में सर रखे हैं और कुफार मुशरिकीन जिस्म पर कुचलियां डाल रहे हैं। बताओ कुचलियां जिस्म पर है या नबी ने सजदा छोड़ दिया? क्या आप ताइफ के मैदान में पत्थर बरसाए गए? क्या नबी ने कलमे का ऐलान छोड़ दिया? क्या मुस्तफा जाने रहमत ने कुरान की तिलावत छोड़ दी? ईमानदारी से बताओ मेरी कौम के शहजादे और शहजादियों, आज थोड़ी सी मुसीबत आ जाए, थोड़ी सी परेशानी आ जाए, हम समझौता के लिए तैयार हैं, हम सारे मामलात के लिए तैयार हैं। अब हमारे मुकद्दर में यही है कि हम यही बोलेंगे फला काम हो गया, ये तो होकर ही रहना था। हमारे अंदर ये ताकत और ये सलाहियत नहीं है। अगर यही बात जो हम सोचते हैं सहाबा ने सोच लिया होता तो पूरी दुनिया में इस्लाम का परचम नहीं रहा। हमें भूखे रहना है अगर इस्लाम के पैगाम को पहुंचाना है, हमें प्यासे रहना है अगर इस्लाम के पैगाम को करके आगे पहुंचाना है। खजूर की गुठलियां चूस कर मैदान जंग में शहादत का जाम दिया है। सरबलंदी के लिए अपनी काटने अपनी जिंदगी को कुर्बान करती है। आज हमारे अंदर कुर्बानी का जज्बा कहाँ है? आज हमारे अंदर कुर्बान तकबीर का जज्बा कहाँ है? इस नारे तकबीर को सुन के उसकी आवाज की बरकत से कैसर किस्रा के किले फतह हो गए और कैसर किस्रा का महल जमी बोस हो गया। या आज हमारे पास वो ताकतें हैं, या आज हमारे पास वो सलाहियतें हैं, या मुसलमानों तुम कहोगे कि तुम्हारे पास कुरान नहीं है? ऐ मुसलमानों क्या तुम कहोगे कि तुम्हारे पास रसूलुल्लाह की हदीसें नहीं है? ऐ मुसलमानों क्या तुम कहोगे कि तुम्हारे पास रसूलुल्लाह की सीरत की किताबें नहीं है? ऐ इस्लाम की मुकद्दस बेटियों, मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम कहोगी कि तुम्हारे पास सीरत फातिमा ज़हरा का आईना नहीं है? साहिबों, कल परोसे मशक तुम इनकार नहीं कर पाओगे। बहुत बड़े हुसैनी बनते हैं हम, लेकिन अगर परोसे मशक इमाम हुसैन ने आपसे पूछ दिया कि जब यजीद हमलावर हुआ तो हुसैन बेटा लेकर मैदान करबला में पहुंच गया, मैदान करबला में पहुंच गया। औलाद ही नहीं, इमाम हुसैन खानदान लेकर मैदान करबला में पहुंच गए। लेकिन बता, तेरे सामने दीन पर हमला होता रहा मगर तू हुसैनी भी था, खामोश भी था। तू इमाम हुसैन का नारा भी लगाता था, खामोश भी रहता था। तेरी पेशानियों में सड़कों की तरफ क्यों नहीं थी? तेरी दुआओं में असर क्यों नहीं था? आखिर क्या वजह है? आज हमारी कौम के लोग चाय की होटलों में बैठ कर कहते हैं अब इमाम साहब की दुआ में असर नहीं है, अब पीर साहब की दुआ में असर नहीं है, अब हमारा काम कोई नहीं होता। मौलाना साहब, हम न जाने हमने कौन सी खता की है कि हम सजा ही सजा पा रहे हैं। लेकिन मैं आपकी लड़का है, ओए पीला की सर कहाँ जा रहा है? जलसा खत्म हो गया, मजाक समझ लियो जलसा को, आया है जलसा सुनने के लिए। जाहिर सी बात है, जब हमारी कौम के शहजादे पूरी रात यूट्यूब चलाएंगे तो सुबह को स्कूल जाने की तैयारी कैसे होगी? फजर में आंखें कैसे खुलेंगी? हम उस मुल्क में जी रहे हैं जिसे फजर की आजान सुनकर जागना था वो तकिया बदल बदल कर सोता है, और जिसे सोना था वो सुन सुन करके परेशान होकर मुकदमा कर रहा है। साहिबों, अगर अब भी नहीं जागे तो फिर समझ लेना हमारा अंजाम क्या होने वाला है। मैं ये अर्ज कर रहा था, आप कहते हो कि साहब कौन सी गलती हमने की है, कौन सा गुनाह हमने किया है? हमारी माओ, आज तुम्हारी दुआओं में असर नहीं है। हम सलाम के शहजादे और शहजादियों, आज तुम्हारी जिंदगी में कामयाबी नहीं है। अगर इतने आस का जमाना है, हजरत उमर इब्न खत्ताब खलीफतुल मुस्लिमीन है, अगर इतने आस मिस्र के इलाके में इस्लामी परचम लहराने के लिए आगे बढ़े हैं। साहब फतह हो कामरानी नसीब होती चली जा रही है, लेकिन एक ऐसे मकाम पर अमर इब्न आस पहुंचे हैं कि साहब कीले का मुहासरा कर लिया, कीले का घेराव कर लिया। हम तो गुजर गए मगर 6000 इस्लामी फौज में पेश है, मगर मैदाने जंग में जीत नहीं हो रही है। और सुनना, वो आम इंसान नहीं थे साहब, और कोई बड़ी सहाबी के रुतबे को नहीं पहुंच सकता है।
सहाबा की टोली थी, सहाबा की जमात थी, पूरी रात सजदे में सर रखने वालों की जमात थी, जो लोग गुनाह का एहसास करके बारगाह रिसालत में पहुंचकर गुनाह की सजा मांगने वाले लोगों की टोलियां थी, बाबाकार और पाकीज़ा लोगों की टोलियां थी। ऐसे पाकीज़ा लोग एक हफ्ता गुजर गया, बैठ गए, अमर इब्ने आस खलीफतुल मुस्लिमीन को खत लिखते हैं, या अमीरुल मोमिनीन हमें बताया जाए, एक हफ्ता से हमने मुहासरा किया है, मगर क्या वजह है कि मैदान जंग में हम जीत नहीं रहे हैं। और से सुनना मुसलमानों, आंसुओं बहाने से सिर्फ नहीं होगा, फेसबुक पे दो चार जुमले लिख देने से नहीं होगा, याद रख लेना, दो चार जुमले बोल देने से नहीं होगा, जज्बों में इनकलाबी नारा लगा देने से नहीं होगा। जिंदगी में मजा तो जब आएगा कि हमारी जिंदगी में किरदारे सहाबा की झलकी आए, हमारी परेशानियों में शैतान की तैब पैदा हो, सहाबा कराम की जिंदगी में जो एहसास था हमारी कौम के अंदर भी वो एहसास जाग जाए। साहब खत लिखा, या अमीरुल मोमिनीन कौन सी गलती हो रही है हमसे कि आखिर हम मैदान जंग जीत रही है, कौन सी गलती हो गई है। हजरत उमर इब्ने खत्ताब जवाब लिखते हैं, अमर इब्ने आस इस्लामी फौज को जमा करो और पूछो कि कौन सी आका की सुन्नत है जो हमसे छूट रही है। क्या कहा अमर इब्ने खत्ताब ने? हाथ उठाकर बोलेंगे कौन सी सुन्नत है जो हमसे, जरा दोनों हाथों को उठाकर बोलेंगे कौन सी सुन्नत है जो हमसे, कौन सी सुन्नत है जो हमसे छूट रही है। सहाबे कराम को जब खत का जवाब मिला, अमर इब्ने आस की आंखों में आंसुओं के कतरात है, इस्लामी फौज को जमा करते हैं, कहते हैं हमारा अमीर गलत नहीं बोल सकता, हमारा इमाम गलत नहीं बोल सकता, आज तुमने इमाम पे भरोसा करना छोड़ दिया, आज तुमने इन आलिमों की कदर करना छोड़ दिया, आज तुमने इन आलिमों की बातों को मानना छोड़ दिया। मुजाहिदीन इस्लाम थे, हज़रत उमर इब्ने खत्ताब ने जब जवाब लिखा तो बैठ गए और बैठ कर कहने लगे चलो हम मुहासबा करते हैं कौन सी सुन्नत हमसे छूट रही है। सहाबे कराम अमर इब्ने आस से कहते हैं, अमर इब्ने आस जंग की मसरूफियात की वजह से हमने विश्वास करना कम कर दिया है, आका की यही एक सुन्नत है जो हमसे छूट रही है। अमर इब्ने आस कहते हैं आज लड़ाई नहीं, आज शाम को मिसवाज जमा करो और कल नमाज़े फज्र से पहले नदी किनारे बैठकर हम सब आका की सुन्नत तो काम चलेगा। अभी जीता जागता माहौल है, अभी आप सिर्फ सुनिए, वक्त पास मत कीजिए, इस नारा को बचा कर रखिए। अल्लामा शहरियार साहब की बुलाएंगे, नारा लगाइएगा। ये तरीके हजरत अल्लामा सैयद मकसूद गाजी साहब की बुलाएंगे, नारा लगाइएगा। फिर हमारे भाई है ना ख्वाजा गुलाम सरवर साहब, उनको मुकम्मल आपके साथ की जरूरत है, वरना इनकी सांस की जोड़ी टूट जाएगी, इसलिए इसे बचाकर सलामत रखिए। मैं ये अर्ज कर रहा था, और से सुनना मुसलमानों, वो सहाबा की टोली थे, सजदा नहीं छोड़ते थे, रुकू नहीं छोड़ते थे, कयाम नहीं छूटता था, उनसे तिलावतें नहीं छूटती थी, उनसे वाजिबात नहीं छूटते थे, चेहरे पे नबी की सुन्नत थी, रात की तन्हाइयों में मौला की बारगाह में रोते और गिड़गिड़ाते थे। एक सहाबी रसूल की दास्तान तो ये है कि एक ही कपड़ा होता और बीवी उस कपड़े को पहनकर घर में नमाज पढ़ती और शौहर उसी कपड़े को पहनकर मस्जिद नबवी शरीफ में आका के पीछे। पाकीज़ा हस्तियों की पाकीज़गी के बारे में हम शक भी करें ये गवारा नहीं है। यही वजह है हम शियाओं को मुसलमान नहीं मानते, इसलिए कि सहाबे कराम के गुस्ताख है, हम सहाबे कराम के वफादार हैं, इसलिए साहब वफादार बनकर रहिए। सहाबा की टोली है, सहाबा बैठ गए, कहा आका की एक सुन्नत छूट रही है, कल हम नमाज पढ़ने से पहले और वज़ू करने से पहले आका की सुन्नत की अदायगी करेंगे। अल्लाह अल्लाह नमाज़े
फज्र के लिए सहाबा उठे हैं, हाथ में मिसवाक है, नदी किनारे बैठ कर सब मिसवाक कर रहे हैं। कुफार मुशरिकीन अपने कीले पे खड़े होकर देख रहे हैं। आज मुसलमानों के पास ये नया हथियार कहाँ से आ गया है? आज मुसलमान, आज हमारी खैर नहीं है। आज मुसलमानों ने हमें पकड़ लिया तो ये अपनी ताकतों से हमें खा जाएंगे। आज हमें छोड़ेंगे नहीं। मुशरिकीन के सिपाही दौड़े दौड़े गए। कहा बादशाह सलामत, आज कल तक मुसलमान तलवार तेज करते थे, आज मुसलमान दांत तेज कर रहे हैं। अब हमारी जान की खैर नहीं है। बादशाह ने कहा करना क्या है? कहा जाओ जाकर के सुलहनामा का झंडा बुलंद करो। इधर सहाबा मिसवाक कर रहे हैं, आका की सुन्नत पे अमल कर रहे हैं, और उधर बादशाह सुलह का झंडा ऊपर कर रहा है। करेंगे हम तुमसे जंग नहीं करेंगे, बल्कि हम तुमसे सुलह करने को तैयार है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आप अपने माशरे का मुहासबा कीजिए। सुन्नत तो दूर की बात, हम तो नमाज फर्ज है नहीं पढ़ते, हम तो रोजा फर्ज है नहीं रखते, हम तो हज फर्ज है नहीं करते, ज़कात देना हमारे लिए जरूरी है मगर हम नहीं देते। सुन्नत तो दूर की बात, जो जिस कौम ने फर्ज को छोड़ दिया है, बताओ अगर सहाबा सुन्नत छोड़ दे तो मैदाने जंग में जीत नहीं है, और जो कौम फौज छोड़ दे फिर कहे मौला कामयाबी नहीं दे रहा है। आपकी वजह क्या है? जो वाजिब छोड़कर कहे मौला कामयाबी नहीं दे रहा है, वजह क्या है? जो माँ बाप का नाफरमान बनकर कहे, रब्बे करीम का नाफरमान बनकर कहे कि आखिर मौला हमें कामयाबी क्यों नहीं दे रहा है? ऐ मुसलमानों, आज के इस जलसे से तौबा करके जाओ, तो फर्ज तो फर्ज, वाजिब तो वाजिब, इंशाअल्लाह हम जिंदगी में कभी सुन्नत भी नहीं छोड़ेंगे। देखिए, मैं वादा कराना नहीं चाहता, बोलिए कितने लोग हैं जो इंशाअल्लाह सुन्नत नहीं छोड़ेंगे? जरा हाथ उठाइए तो। माशाअल्लाह सारे लोग हैं। याद रखिएगा, कल से सुन्नत समझ लीजिएगा। मैं समझाऊंगा तो बहुत लंबा वक्त लगेगा, इसलिए मैं चाहता हूँ जरा मूड बनाइए। मेरी माँ बहनों, तुम भी आई हो, बच्चों को फर्ज सिखाओ, बच्चों को वाजिब सिखाओ, बच्चों को सुन्नत सिखाओ। आज तेरे बच्चे कामयाब इसी वजह से नहीं है, आज तेरी बेटियां कामयाब इसी वजह से नहीं है। अल्लाह अल्लाह, अब सुनो क्या हुआ। जब झंडा सुलह का बुलंद हुआ, सहाबा मुस्कुराने लगे। कहा हे उमर इब्न खत्ताब, आपकी रहनुमाई और आका की एक सुन्नत की बरकत ने बेगैर मैदाने जंग में लड़े हमें कामयाब कामरान कर दिया है, बेगैर लड़े कामयाब कामरान कर दिया है। उधर से काफी आता है, कहता है आवाज सुलह कर लो, बताओ हुकूमत चाहिए? कहा नहीं। क्या कहा? नहीं। हाथ उठाकर बोलिए, क्या कहा? नहीं। हमारी लड़ाई हुकूमत के लिए नहीं, हमारी लड़ाई या कुर्सियों के लिए नहीं है। कहा फिर दौलत चाहिए? अमर इब्न आस ने कहा नहीं। कहा क्या चाहिए? कहा सब कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाओ, हमारी जंग खत्म हो जाए। क्या कहा? अमर इब्न आस ने कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाओ, जंग खत्म हो जाएगी। इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, तुम चाहते हो ना हमारी जिंदगी से परेशानी दूर हो, तुम चाहते हो ना हमारी जिंदगी से वीरानी दूर हो, तुम चाहते हो ना हमारा समाज अच्छा हो, तुम चाहते हो ना अच्छा हो, तो फर्ज पे चलने वाला बन जाओ, वाजिब को अपनाने वाला बन जाओ, के नाम की सुन्नत पे चलने वाला बन जाओ, सैयदा फातिमा ज़हरा की सुन्नत अदा करे, मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नत अदा करे। इंशाअल्लाह हमारी दुनिया भी हसीन होगी, आखिरत भी हसीन होगी। ये बताइए कितने लोगों को ये बात अच्छी लगी? सारे लोगों को अच्छी लगी? और बोलूं इजाजत है? अरे बोलूं, वक्त बहुत कम है। भाई जान को जगह दीजिए। माशाअल्लाह, वो जो हाँ माशाअल्लाह माशाअल्लाह, हाँ आपके पीछे माशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से है?
بہت اچھی نیند آ رہی ہے، ماشاءاللہ شادی بیاہ کا موسم ہے۔ ایسے بھی ہے نا علامہ قمر الدین بلبل بنگال رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ جس کو کہیں نیند نہیں آتی ہے اس کو جلسوں میں لا کر کے بیٹھا لو، رات کے 12 بجتے بجتے خود بخود بغیر دوا کی گولی کے اسے نیند آ جائے گی۔ الحمدللہ 25 منٹ کی میری گفتگو ہو گئی، اور 25 منٹ سماعت کر لیجیے، اجازت ہو تو بولو، ذرا دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بولتے یا رسول اللہ، اور سے بولے یا حبیب اللہ، اور سنیے گا عمر بن خطاب کا زمانہ ہے، وہ عمر جنہیں دیکھ کر شیطان راستہ بدل لے، وہ عمر جنہیں دیکھنے کے بعد کسرا کہل جائے، وہ عمر جن کے حیثیت کا یہ عالم کہ بڑے بڑے لوگ عمر کا نام سن کر کے کاپ جائے۔ اللہ اللہ، عمر بن خطاب کا زمانہ ہے، ایک نوجوان پڑھی لکھی عالمہ لڑکی پر عاشق ہو جاتا ہے، اس عالمہ لڑکی کے پیچھے چل پڑتا ہے، عالمہ اڑتی ہے اور مڑ کر اس نوجوان کو کہتی ہے اے نوجوان میرا پیچھا گلیوں میں کیوں کرتے ہو؟ نوجوان بول پڑتا ہے میں تیرے حسن کا دیوانہ ہوں، میں تیرے آنکھوں کا عاشق ہوں، میں تیرے حسن کا مستانہ ہوں، میں تیرا عاشق ہوں اس لیے تیرے پیچھے چلتا ہوں۔ اس عالمہ نے کہا ٹھیک ہے مجھ سے محبت کرتے ہو؟ کہا کرتا ہوں۔ کہا میں نے سنا ہے جو جس سے محبت کرتا ہے اس کی بات مان لیتا ہے، تم میری ایک بات مان لو میں تجھ سے محبت کرنے لگوں گی۔ نوجوان نے کہا تیری کون سی بات ہے؟ کہا مسجد نبوی شریف میں چلا جا اور خلیفۃ المسلمین حضرت عمر بن خطاب کے پیچھے 40 روز باجماعت نماز پڑھ لے، 40 روز بعد آنا میری تیری ملاقات ہوگی، نکاح ہوگا، میں تیری ہو جاؤں گی تو میرا ہو جائے گا۔ بڑی بات ہے 40 روز عمر بن خطاب کے پیچھے نماز ہی تو پڑھنی ہے، میں جاؤں گا نماز پڑھ کے آؤں گا۔ نوجوان چلا ہے، اللہ اللہ جب نوجوان مسجد نبوی شریف میں داخل ہوا ہے، جب تک مسجد نبوی شریف میں نہیں گیا تھا ذہن میں آوازی تھی، شرابی بھی تھا، صاحب کردار و کریکٹر کا خراب انسان تھا، مگر جب اس پڑھی لکھی لڑکی نے اسے مسجد نبوی شریف میں بھیجا، جن کے سجدے اس وقت تک مکمل نہیں ہوتے جب تک کہ جلوے خدا بندی کا نظارہ نہ ہو جائے۔ اللہ عمر بن خطاب کے پیچھے 10 روز ہی نماز پڑھی تھی کہ دل کی آدھی دنیا بدل گئی، صاحب گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے، 40 دن گزرتے گزرتے ساری دنیا کے غلط خیالات اس کے سینے سے نکل جاتے ہیں، اب اس کے سینے میں جلوے، اس کے سینے میں عشق خدا اور عشق مصطفیٰ ہے۔ اللہ اللہ، اب اس کا سینہ نور سے معمور ہے، ذہن میں بس ایک ہی دھن ہے مالک و مولا تو راضی ہو جائے، ہمارا چلنا شریعت کے مطابق ہو۔ اب اس کی نگاہیں بھی پاکیزہ ہے، دل بھی پاکیزہ ہے۔ نوجوان 40 روز بعد مسجد نبوی شریف سے نکلا ہے، نکل کر گھر کی طرف چلا ہے۔ اللہ اللہ، راستے میں وہ عالمہ انتظار کر رہی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نوجوان یہ سمجھے کہ اس عالمہ نے جھوٹ کہا تھا، اس لیے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے لا یخلف المیعاد، یاد رکھنا ہے لوگوں وعدہ خلافی نہ کرو، اوفوا بالعہد، اگر وعدہ کرو تو وعدہ کو پورا کرو۔ کھڑے ہو کر انتظار کر رہی ہے، اب یہ نوجوان جو چلا ہے نگاہیں اونچی کیے ہے، نہ دائیں دیکھتا ہے نہ بائیں دیکھتا ہے، حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق چل رہا ہے۔ چلتے چلتے جب عالمہ کے قریب سے گزرا تو نگاہیں مڑتی نہیں ہے، سیدھے چلا جا رہا ہے۔ عالمہ نے کہا نوجوان ٹھہرو، کیا میں وہ نہیں ہوں جس کے حسن کا تو دیوانہ تھا؟ کیا میں وہ نہیں ہوں جس کی آنکھوں کا تو مستانہ تھا؟ نوجوان نے ہاتھ جوڑ کر کہا بہن تیرا شکریہ، میں تیرے پیچھے آیا اور تو نے مجھے عمر تک پہنچا دیا، پہنچا دیا ہے، اور آقا نے مجھے خدا تک پہنچا دیا ہے۔ اے بہن اب ان نگاہوں میں دنیا کی ضرورت نہیں ہے، دنیا کا جمال نہیں ہے، مگر یہ بہن میں تیرا شکریہ کیسے ادا کروں؟ ایک بات کو بتا دے، تو چاہتی کہ مجھے جو چاند تماچے لگا سکتی تھی، تو چاہتی تو عدالت فاروقی کے سے میں تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ
आज ही सारे लोग नमाजी बन जाइएगा। अगर बताइए इंशाअल्लाह कितने लोग हैं जो इंशाअल्लाह नमाजी बनेंगे, जरा हाथ उठाइए तो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह सारे लोग बनेंगे, बड़े अच्छे लोग हैं। मैं क्या जानता था कि आप लोग इतनी जल्दी मेरी बात मान लीजिएगा। कल चाय की होटल में मत कहिएगा तो हम लोग समझे नहीं और हाथ उठा लिए। साहबों याद रखिए हाथ उठवाना आसान है, ये मैं भी समझता हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ कि इंशाअल्लाह हम लोग नमाजी बनेंगे। दुआ कीजिए, अपने वादे पर कायम रहिए। आज साहब हमारी जिंदगी के मामला क्या है, आला हज़रत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत ने लिखा कि मज़ार शरीफ पर एक उंगलियां उठाकर बोलिए कितनी चादर, एक चादर। हम उर्स में कितनी चादरें चढ़ाते हैं? 1000, 1 लाख, 1 करोड़ कितनी चादरें चढ़ाते हैं। गरीब नवाज भारत में मसाजिद बनाने आए थे या ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को लेकर मजहबी इस्लाम की तबलीग करने आए थे। भारत में तबलीग मसाजिद करेंगे या आलिम करेंगे? जोर से। अच्छा साहब, भागलपुर की सबसे बड़ी खानकाह का क्या नाम है? खानकाह शहबाजिया। ये बताइए वहाँ मसाजिद बनाए जाते हैं या मदरसे में पढ़ाकर आलिम बनाए जाते हैं? आप ईमानदारी से बोलिए, क्या बनाए जाते हैं? आलिम बनाए जाते हैं। हाफिज़े मिल्लत ने मसाजिद नहीं आलिम बनाया, साहब ख्वाजा गरीब नवाज ने मसाजिद नहीं आलिम बनाया, मखदूम अशरफ ने मसाजिद नहीं आलिम बनाया, मुजाहिद मिल्लत ने मसाजिद नहीं आलिम बनाया। आज इस कौम ने आलिमों को छोड़ दिया और मज़ाहिरों पर भरोसा कर लिया। नतीजा ये निकला फिर नमाजी मज़ाहिर तुझे नमाज पढ़ने की तबलीग कैसे करेगा? तो वाली सुनकर मचलने वाला मज़ाहिर तुझे इस्लाम की तबलीग क्या करेगा? इसलिए सुल्तान रज़ा कहना चाहेगा, ऐसे बावकार, ऐसे बावकार, ऐसे बावकार लोगों के साथ रहो जो मज़ाहिर नहीं आलिम बनाना जानते हैं। यही वजह है खानकाह शहबाजिया में जाओगे साहब, इनके घर का एक बच्चा नहीं, हर बच्चा आलिम दीन मिलेगा, हर बच्चा हाफिज़े कुरान मिलेगा, हर बच्चा दीनी सलाहियतों का मालिक मिलेगा। आपने कभी इससे गौर किया है? अब मेरी बात सुनिए जो मैं बताना चाह रहा था। मैं ये नहीं कहता मज़ार शरीफ पर चादरें मत चढ़ाओ, लेकिन 2000 की चादरें, 5000 की चादरें, फिर आकर कहते हैं अल्लामा अब्दुल कादिर साहब क़िबला अजमेर शरीफ हम गए थे, चादर भी चढ़ाए मगर काम नहीं बना। मखदूम अशरफ की चौखट पर भी गए थे, चादरें हमने चढ़ाई मगर काम नहीं बना। सुल्तान रज़ा कहना चाहेगा, याद रखना 5000 की मज़ार पर चादरें चढ़ाने वाले, ईद में तूने माँ को कितना कीमती कपड़ा पहनाया था, ईद में तूने बाप के लिए कितनी कीमती लुंगियां खरीदी थी, ईद में तूने माँ को राजी करने के लिए कितने लिफाफे भर के दिए थे। बता ईमानदारी से तूने क्या किया था? कभी ईमानदारी सीने पे हाथ रख करके तूने सोचा है? मैं ये नहीं कहता बाजारों पर जाने से पहले, मस्जिदों में जाने से पहले अपने माँ बाप के पास जाओ, उनकी खिदमतें करो, उन्हें राजी करो, फिर बुजुर्गों की बारगाह में जाओ। जब ईद की दुआएं लेकर जाओगे तो गरीब नवाज की बारगाह में चादरें भी मकबूल होगी, के सजदे भी मकबूल होंगे, मकबूल होंगे। लेकिन आज हमने जो इस प्लेटफार्म को छोड़ दिया, आज हमने इस प्लेटफार्म को खैरबाद कर दिया। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, मैं ये नहीं कहता कि चादरें मत चढ़ाओ, चढ़ाओ मगर मत चढ़ाओ 500 की चादरें, 50 रुपए की फूल की चादर। सैयदी सरकार हज़रत अल्लामा सैयद शहबाज अली रहमान इस्लाम की पर चढ़ाओ, 450 रुपए बचाओ, बच्चे के लिए काफी खरीद दीजिए, किसी गरीब बच्चे के लिए किताब खरीद दीजिए, किसी गरीब बच्चे के लिए कलम खरीद दीजिए। कसम खुदा की ये अल्लाह वाले जितनी तुम्हारी चादर से खुश नहीं होंगे, उससे कहीं ज्यादा उनके नाम पे तालीम होगी, खुश हो जाएंगे, इस्लाम फैलेगा, खुश हो जाएंगे, इस्लामी तालीमात आम होंगे, खुश
بولیے کتنے لوگ ہیں جو انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے؟ ہاتھ اٹھائیے تو سارے لوگ عمل کریں گے، آپ لوگ ہی کہیے گا۔ ایسے مولانا کو حضرت سیوانی صاحب نے کھڑا کر دیا ہے، ہر 10 منٹ بعد کہتا ہے ہاتھ اٹھائیے تو، اس لیے کہ یہ قوم الیکشن میں ہاتھ اٹھاتے تو تھکتی نہیں ہے، تو یہاں ہاتھ اٹھاتے تھکنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور سے میری بات سنیے گا، چچا جان غصہ ہو کر نہیں نہ جا رہے ہیں؟ اچھا غصہ اچھا ٹھیک ہے، نہیں بھائی اتنے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، اس لیے ناراض مت ہوئیے۔